Bismillahirrahmanirrahim. In last lecture, we start the genital system of the male and female. So in genital system, we discuss the ovary and testes. So now today in lecture, we will discuss the genital ducts of the male and female. So genital ducts in different state. Initially, both male and female embryo have two pair of the genital ducts. Two pair. One is the mesonephric duct and other is the paramesonephric duct. Mesonephric duct also called as a Wolfram duct, while the paramesonephric duct also called as a Mullerian duct. Cranially, the paramesonephric duct open into the abdominal cavity with funnel-like structure, and caudally, the paramesonephric duct first run lateral to the mesonephric duct, then cross ventrally to grow cardiomedially. In this picture, you see that here, this is a red color paramesonephric duct, which is vertically, initially, and lateral to the mesonephric duct. And at the mid level, they will cross ventrally, anteriorly, and now it become a medial to the mesonephric duct and joined with the opposite paramesonephric duct. Cranially, it is open into the abdominal cavity. This is the abdominal cavity. After this stage, this will form like this. This is the fallopian tube, this is the uterus, and this is the vagina. So we will discuss further. So cranially, the paramesonephric duct open into the abdominal cavity with the funnel-like structure. Caudally, paramesonephric duct first laterally to the mesonephric duct, then cross ventrally to grow cardiomedially. In the midline, it come in close contact with the paramesonephric duct form from the opposite side. The two ducts are initially separated by the septum, but later fuse and form the uterine canal. So caudal tip of the combined duct project into the posterior wall of the urogenital sinus. यूरोजेनाइटल साइनस की पोस्टीरियर वॉल में जो काडल टिप ऑफ द पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट है, बोथ राइट एंड लेफ्ट दोनों की जो है वो पेनिट्रेट कर रही है, प्रोजेक्ट कर रही है पोस्टीरियर वॉल ऑफ द यूरोजेनाइटल साइनस. सो पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट आल्सो कॉल्ड एज द मुलेरियन डक्ट. The mesonephric duct open into the urogenital sinus on the either side of the Mullerian tubercle. So mesonephric duct जो है Mullerian tubercle जो ये दोनों paramesonephric duct राइट और लेफ्ट साइड आपस में कार्डली टिप ज्वाइन कर रही हैं, वहाँ पे Mullerian tubercle बन रही है. और ये जो इसके लेटरल साइड पे ऑन द लोअर एंड पे mesonephric duct है वो ओपन हो रही है into the urogenital sinus on the either side of the Mullerian tubercle. In this picture you see here, this is the Mullerian tubercle. Paramesonephric tubercle, also called as the Mullerian tubercle. This is the Mullerian tubercle. On lateral side of this, these are the mesonephric duct which open into the urogenital sinus. Molecular regulation of the genital duct. Molecular regulation में when testes secrete two factor. One is the Mullerian inhibitory factor or substance, and other is the testosterone. Mullerian inhibitory substance is secreted by the Sertoli cell, while the testosterone secreted by the Leydig cell. And what is the function of the Mullerian inhibitory factor? Mullerian हम किसको कह रहे थे? Paramesonephric duct को कह रहे थे. Mullerian duct और paramesonephric duct. Mullerian duct inhibitory substance यानी कि paramesonephric duct को inhibit करेगा, suppress करेगा. In male, they will totally suppressed. Only two or one things are present which persistent. I will later on this slide about that.
while the testosterone mesonephric duct stimulate, mesonephric duct को stimulate कर रहा है, और mesonephric duct stimulate होगी तो उससे vas deferens और epididymis की formation होगी. Dihydrotestosterone, it is the potent form of the testosterone. Testosterone जब 5-alpha reductase enzyme एक्ट करती है तो टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट हो जाता है डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, which is 4 to 5 times more potent than the testosterone. ये डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन क्या करेगा, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया को स्टिमुलेट करेगा. एक्सटर्नल जेनाइटेलिया इन द मेल, which is the growth of the penis, growth of the scrotum and growth of the prostate gland. While the female में फिर हम जब वो फीमेल जेनाइटल डक्ट आएंगी तो उसको हम डिस्कस करेंगे. So genital duct in the male are stimulated to develop by the testosterone, and genital duct are derived from the part of the mesonephric kidney. किडनी को जब हमने डिस्कस कर रहे थे तो 3 सिस्टम थे, mesonephric, metanephros और pronephros. प्रोनेफ्रोस जो है टोटली डीजेनरेट हो जाता है और कभी भी वो फंक्शनिंग नहीं होता है, और मीजोनेफ्रिक कुछ टाइम के लिए फंक्शनिंग होता है फिर वो डीजेनरेट हो जाता है. वाइल जो परमानेंट किडनी है वो मेटानेफ्रिक किडनी, मेटानेफ्रिक जो सिस्टम है उससे करती है. तो इस हिसाब से जो जेनाइटल डक्ट्स ऑफ द मेल जो हैं जिस पे टेस्टोस्टेरोन इफेक्ट करता है वो मीजोनेफ्रिक किडनी का सिस्टम होता है. मीजोनेफ्रिक एस्क्रीटी ट्यूब्यूल जो बनते थे वो नेफ्रॉन बन रहा था, और मीजोनेफ्रिक जो डक्ट थी उससे फर्दर ये जेनाइटल डक्ट्स की फॉर्मेशन होगी. एज द ओरिजिनल the excretory tubule called the epigenital tubule, which contact with the retitestis from the efferent ductules of the testis. The excretory tubule along the caudal portion of called as a paragenital tubule do not join the cord of the retitestis and known as a paradidymus. तो आप इस पिक्चर में देखें तो इसका जो अपर पोर्शन था मेसोनेफ्रिक एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल ऑफ द मेसोनेफ्रिक एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल यानी कि नेफ्रॉन की फॉर्मेशन हो रही थी, वो ट्यूब्यूल आगे चल के परसिस्टेंट रहते हैं और जो अपर लेवल पे हैं एपिजेनाइटल ट्यूब्यूल्स बना रहे हैं. एपिजेनाइटल ट्यूब्यूल आर कनेक्टेड विद द रेटिटेस्टिस. रेटिटेस्टिस इज कनेक्टेड विद दिस seminiferous tubules. So in this way the semen is form here which passes through the retitestis and the or epigenital tuberculosis को also we called as a ductus efferent. Ductus efferent. तो यहाँ पे seminiferous tubule है, वहाँ पे semen की formation होगी. They go into the retitestis and through the retitestis they come and pass through the ductus efferent and by this they come into the epididymus. This is the whole is the epididymus. और जो इसका जो मेसोनेफ्रिक एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स का जो लोअर पोर्शन है ये तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये एपिजेनाइटल ट्यूब्यूल्स थे. एपिजेनाइटल ट्यूब्यूल डक्टल्स इफ्रंट की फॉर्मेशन की, वाइल द यहाँ से जो नीचे पोर्शन है दे विल फॉर्म द पेराजेनाइटल tubercle. Paragenital tubercles also called as a paradidymus. Epididymus के थ्रू ये उसके करीब ही है तो उसको paradidymus उसको पोर्शन को कह रहे हैं जो आगे चल के हेड ऑफ द epididymus की फॉर्मेशन कर रहा था. तो दिस इज द तो क्या कर रहा है ये originally excretory tubule called the epigenital tubule which contact with the retitestis from the efferent ductules of the testes. Excretory tubule along the caudal portion of the testes called the paragenital, जो नीचे वाला portion है उसको paragenital tubules कहते हैं. Do not join the cord of the retitestis known as the paradidymus. Except of the most cranial portion, appendix epididymus, the mesonephric duct persistent and form the main genital duct. Except the most cranial, एपिजेनाइटल से भी ऊपर जो पोर्शन था वो डिजेनरेट हो जाता है. उसका जो पार्ट बनता है वो क्या बना रहा है एक्सेप्ट द क्रेनियल पोर्शन अपेंडिक्स एपिडाइडाइमस. अपेंडिक्स एपिडाइडाइमस
is the remnant of the paramesonephric duct का mesonephric duct का remnant है जो upper portion में, और middle portion में जो बीच वाला portion था वो epigenital था जो बना रहा था एपीजेनाइटल ट्यूब्यूल्स फिर डक्टस इफरन, और नीचे वाला जो पोर्शन था जो ट्यूब्यूल के साथ अटैच नहीं हो रहा था एस्क्रीटरी ट्यूब्यूल की, तो उसको हम कह रहे थे पेरा एपिडाइडाइमस। द इमीडिएटली बिलो द एंट्रेंस ऑफ द इफरन डक्टिलोस द मेसोनेफ्रिक डक्ट elongated and become a ductus epididymis. Immediately below the entrance of the efferent, जैसे efferent ओपन किस में हो रही है, mesonephric ducts में, और mesonephric duct आगे चल के क्या बन रहा है, ये ductus epididymis. So from the tail of the epididymis give a bud with this outbudding from the seminal vesicle. जैसे एपिडाइडाइमस का लास्ट पोर्शन है जिसको हम टेल कर रहे हैं, वहां से एक बड की अराइज हो रहा है जो आगे चल के सेमाइनल वेजिकल की फॉर्मेशन करेगा। ये सेमाइनल वेजिकल और एपिडाइडाइमस का लोअर पोर्शन दे कंजॉइन टुगेदर एंड दे फॉर्म द इजैक्युलेटरी डक्ट. Ejaculatory duct open into the urethra, prostatic urethra. In the male, there are the 4 part. First is the 2 part, one is the anterior, other is the posterior, and again anterior have the 2 part and posterior have the 2 part. Posterior में 2 part जो है, one is the prostatic, other is the membranous urethra. So the ejaculatory duct, they are open into the prostatic urethra and then the membranous urethra, और जो anterior part of the urethra है वहाँ पे बल्बर और पेनाइल यूरिथ्रा की फॉर्मेशन होती है। तो ये 4 पार्ट होते हैं यूरिथ्रा के। तो जो इजैक्युलेटरी डक्ट है दे आर ओपन इनटू द प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा। तो मेसोनेफ्रिक डक्ट एपिडाइडाइमस, जो मेसोनेफ्रिक डक्ट है अभी एपिडाइडाइमस हो गई है, और ऑब्टेन ए थिक मस्कुलर कोट एंड फॉर्म द डक्टस डिफरेंट। इस मेसोनेफ्रिक डक्ट को अभी जो वहां से ऊपर से भी डिजेनरेट हो गया, नीचे से भी ये कनेक्टेड हो गया, तो उसको हम कह रहे थे डक्टस एपिडाइडाइमस। डक्टस एपिडाइडाइमस से थोड़ा आगे चलेगा तो उसके अराउंड ऐसे मस्कुलर कोट आ रही है, डेलिशियस मस्कुलर कोट। अब उसको हम कहते हैं डक्टस डिफरेंस या वास डिफरेंस, आल्सो कॉल्ड एज वास डिफरेंस। द रीजन ऑफ द डक्टस बियॉन्ड द सेमाइनल वेसिकल कॉल्ड एज एजैक्युलेटरी डक्ट। तो जो डक्टस डिफरेंट का लोअर पोर्शन था, वास डिफरेंट था, वहां से एक बड की फॉर्मेशन हुई जो सेमाइनल वेसिकल ने की को प्रोड्यूस किया। अब सेमाइनल वेसिकल एंड लोअर पोर्शन ऑफ द वास डिफरेंट कंजॉइन टुगेदर एंड दे फॉर्म द एजैक्युलेटरी डक्ट। तो ये सारे कहाँ से बन रहे हैं, मेसोनेफ्रिक डक्ट से। अब हमने ओवरी, जो मेल का जो हार्मोन था, दे आर द टेस्टोस्टेरोन, उसका इन्फ्लुएंस था, और टेस्टोस्टेरोन ने फिर डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में फिर ये जेनाइटल डक्ट्स ऑफ द मेल की फॉर्मेशन हुई। इन द फीमेल देयर इज द गोनेड्स ओवरी, फ्रॉम द एस्ट्रोजन इज सीक्रेटेड, also estrogen, also placental secretion is present. So ये क्या करेगा, एस्ट्रोजन पेरा मेसोनेफ्रिक डक्ट को स्टिमुलेट करेगा। वहां से जो टेस्टिस था वहां से 2 फैक्टर निकले थे, वन इज द मुलेरियन इनहिबिटरी फैक्टर, व्हिच मुलेरियन इनहिबिटरी पेरा मेसोनेफ्रिक डक्ट को आल्सो वी कॉल्ड एज ए मुलेरियन डक्ट। मुलेरियन इनहिबिटरी पेरा मेसोनेफ्रिक डक्ट को रिग्रेस कर रहा था, डिजेनरेट कर रहा था इन द मेल, while in the female ovary secrete the estrogen effect on the paramesonephric duct. Paramesonephric duct again they convert into the uterine tube, uterus and upper portion of the vagina. Vagina have the 2 portion, one is the lower portion and the upper portion. Upper portion is formed by the paramesonephric duct. Paramesonephric duct form the genital duct in the female with the help of the estrogen. Estrogen is secreted by the ovary or placenta. While this estrogen also affect on the external genitalia, stimulate the labia minora and labia majora, clitoris and lower portion of the vagina. Estrogens are also affect on the lower portion of the vagina. तो genital duct in the male को हमने डिस्कस करके आए। As the mesonephric regress and the few excretory tubule
Epigenital जो tubules they established connected with the rete testes, and finally efferent dactylos become a form. Excrete tubule along the caudal portion of the testes. The paragenital tubules do not join the cord of the rete testes. The vestiges are the collectively known as the पैराडाइडाइमस. जो लोअर पोर्शन था एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल का, जो अपर पोर्शन था वो तो इफ्रंट डक्टिलस बन रहा था. इफ्रंट सेमिनिफेरस से कनेक्टेड होगा और यहाँ से एपिडाइडाइमस से कनेक्ट होगा. इफ्रंट इज द कनेक्शन बिटवीन द रेटी टेस्टिस एंड मीजोनेफ्रिक डक्ट, जिसको हम एपिडाइडाइमस कह रहे हैं, उसके कम्युनिकेशन, और रेटी टेस्टिस कम्युनिकेट करेगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल सीमेन की फॉर्मेशन करेगा, और सीमेन की फॉर्मेशन तो सीमेन का जो पाथवे है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, रेटी टेस्टिस, इफ्रंट डक्टिलोस, फिर एपिडाइडाइमस में आएगा. फिर एपिडाइडाइमस से आगे अप टू द एजेकुलेटरी डक्ट तक प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में आके ओपन करेगा. दिस इज ऑल अबाउट द जेनिटल डक्ट ऑफ द मेल. तो जेनिटल डक्ट ऑफ द मेल में एक तो एपिडाइडाइमस है, एपिडाइडाइमस के ऊपर मस्कुलर डेलिशियस मस्कुलर कोट आ रहा है, तो उसको हम डक्टस डिफरेंस या वास डिफरेंस कह रहे हैं. वास डिफरेंस का जो लोअर पोर्शन है वहां से एक बड अराइज हो रहा है, जिससे समाइनल वेजिकल की फॉर्मेशन हो रही है, और समाइनल वेजिकल डक्टस डिफरेंस का लोअर पोर्शन से कंबाइन होगा और एजेकुलेटरी डक्ट की फॉर्मेशन होगी. द पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट इन द मेल degenerate except for the small portion at their cranial and the appendix testes. The paramesonephric duct totally regress, degenerate in the male. Only some small portion in the cranial and present, which is called as the appendix testis. तो आप इस पिक्चर में देखिए ना, इनिशियली ये पिक्चर थी, ये जो एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल है एपिजेनाइटल, ये इफ्रंट बन रहा है, और ये एपिडाइडाइमस है. एपिडाइडाइमस आगे चल के वास डिफरेंट बन रहा है. ये वास डिफरेंट के लोअर एंड पे ये बडिंग हो रही है. बडिंग से ये समाइनल वेजिकल बन रही है. समाइनल वेजिकल का ल्यूमन और वास डिफरेंट का ल्यूमन ये आपकी एजेकुलेटरी डक्ट बना रहे हैं, और ये ओपन होगी प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा. प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा इज अ पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर यूरेथ्रा. सो और ये आप जब इस पिक्चर में देखें, दीज आर द ट्यूब्यूल्स व्हिच इज द समाइनल, दीज आर द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल वेयर द सीमेन इज द फॉर्मेशन. तो इधर ये उसकी फॉर्मेशन होगी, और जैसे तो उसका पाथवे क्या है, रेटी टेस्टिस है, इफ्रंट से, और यहाँ पे फर्द जो स्पर्म की मैच्योरेशन होती है तो एपिडाइडाइमस में होती है. तो हम जब अगर इनफर्टिलिटी होती है तो उसमें हम दो चीजें देखते हैं. वन इज द काउंट ऑफ द स्पर्म, अदर इज द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म. तो काउंट ऑफ द स्पर्म और मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म, काउंट तो जितना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बना वही काउंट आएगा एपिडाइडाइमस में. अब एपिडाइडाइमस में फर्दर उसकी मैच्योरेशन होगी तो उसमें जो मोटिलिटी है फिर उसकी इंक्रीज होगी इन ड्यूरेशन में. जैसे एपिडाइडाइमस में पड़ा हुआ है, जब डिजायर होगी और इंटरकोर्स होगा और ये इजेक्यूलेट होगा तो फिर उसमें हम सीमेन एनालिसिस में देखते हैं. तो जेनिटल डक्ट ऑफ द फीमेल में पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट, मेल में टोटली डिजेनरेट हो रही थी, सिर्फ उसका एपिडाइडाइमस बना, टेस्टिस बन रहा था. अब जो फीमेल में है तो टोटली चीजें जो है पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट से बनेगी, और जो मीजोनेफ्रिक डक्ट है वो डिजेनरेट हो जाएगी फीमेल में. ये वाइस वर्सा है कि मेल में पैरामीजोनेफ्रिक डिजेनरेट डिसअपीयर रिग्रेस हो रही थी, और जो मेल में है वो मीजोनेफ्रिक डक्ट डिजेनरेट डिसअपीयर और हो रही थी. तो पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट डेवलप इन द मेन जेनिटल डक्ट ऑफ द फीमेल. इनिशियली there are 3 parts recognized in the each duct. Each duct means right paramesonephric duct and left paramesonephric duct having a 3 part. One is the cranial part, other is the horizontal part, third one is the caudal part. So cranial vertical portion that open into the abdominal cavity. मैंने आपको पिक्चर दिखाई तो lateral to the mesonephric duct एक रेड कलर की आ रही थी लाइन ट्यूब, जिसको हम मीजोनेफ्रिक डक्ट कह रहे हैं. तो क्रेनियली वो लेटरली थी मीजोनेफ्रिक डक्ट के और ओपन हो रही थी एब्डोमिनल कैविटी में.
जैसे वो मिड पोर्शन पे आ रही थी तो दे क्रॉस टू द मेसोनेफ्रिक डक्ट वेंट्रली और एंटेरियरली। जैसे वो क्रॉस कर रही थी तो अब मेसोनेफ्रिक वर्टिकल क्रेनियल पोर्शन में वो लेटरल साइड पे थी, अब ये मीडियल साइड पे हो जाएगी। कार्डली वर्टिकल पार्ट फ्यूज विद द पार्टनर ऑफ द अपोजिट साइड, यानी कि अब लेटरल से मीडियल साइड पे आई, मीडियल साइड में इसी तरह लेफ्ट साइड वाली भी आएगी, तो दे ज्वाइन टू द अपोजिट। फर्स्ट टू पार्ट डेवलप इनटू द यूट्राइन ट्यूब। ये जो दोनों अपर वाले पोर्शन है, क्रेनियल पोर्शन एंड हॉरिजॉन्टल पोर्शन जो थे, they will form the uterine tube. Uterine tube also called as a fallopian tube. Fallopian tube, fibria, ampulla, isthmus, these are the part of the fallopian tube. तो ये fallopian tube कहाँ से बन रहे हैं? Cranial portion and horizontal portion of the paramesonephric duct. After the duct fuse in the midline, जो कार्डल पोर्शन पे ये आपस में ज्वाइन कर रही थी, तो कार्डल पार्ट फ्यूज टू फॉर्म द यूट्राइन कैनाल. Uterine canal means uterus. So after the duct fuse in the midline, broad ligament of the uterus is established. तो ये पेरिटोनियम का एक लेयर होता है जो इसको मेंटेन करता है, स्टेबिलिटी देता है, तो वो एस्टेब्लिश होगा. और यूट्राइन ट्यूब लाई इन द अपर बॉर्डर. ये जो ब्रॉड लिगामेंट बना है तो यूट्राइन ट्यूब फेलोपियन ट्यूब इसके अपर पोर्शन पे होगा. इस यूट्राइन ट्यूब के पोस्टीरियर पे सरफेस पे फिर ओवरी की प्रेजेंट होगी. तो यूट्रस एंड ब्रॉड लिगामेंट डिवाइडेड द पेल्विक कैविटी. पेल्विक कैविटी को कैसे डिवाइड कर रहे हैं? दो पाउचेस बन रहे हैं. वन इज द यूट्रो-रेक्टल पाउच, अदर द यूट्रो-वेसिकल पाउच. नाम से जाहिर है, यूट्रो मीन्स यूट्रस एंड रेक्टम. यूट्रस और रेक्टम में जो स्पेस बन रहा है उसको हम कह रहे हैं यूट्रो-रेक्टल पाउच. अब यूट्रस में और वजाइकल, वजाइकल का वीसी हम कहते हैं, वजाइकल कल्क्यूला, जो ब्लेडर में स्टोन होता है तो उसको हम वजाइकल कल्क्यूला कहते हैं. तो उससे यूट्रो वजाइकल मीन्स यूट्रस और ब्लेडर के बीच में जो पाउच बन रहा है तो उसको हम कह रहे हैं यूट्रो वजाइकल पाउच. और यूट्रस और रेक्टम, ये यूट्रस आपके बीच में, नीचे रेक्टम पड़ा हुआ है, ऊपर ब्लेडर पड़ा हुआ है. और ब्लेडर और यूट्रस के बीच में जो पाउच बन रहा है वो यूट्रोरेक्टल पाउच. और जो यूट्रस और वजाइकल के ब्लेडर के बीच में पड़ा है उसको यूट्रोवजाइकल पाउच कहेंगे. दे फ्यूज a paramesonephric duct give rise the corpus and cervix. Corpus is the body of the uterus को हम कह रहे हैं. और क्या बना रही हैं? The fuse and give rise a corpus and cervix of the uterus. They are surrounded by the layer of the mesenchyma. अब ये जो है, ये तो जो एंडोमेट्रियम है वो इसकी डिवीजन हुई है. तो हमने पढ़ा था यूट्रस के तीन लेयर, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम. अब एंडोमेट्रियम तो इस वजह से बना है, अब जो सराउंडिंग मेसेनकाइमा है उसको ये यूट्रस को कवर देगा और उसकी जो मायोमेट्रियम है वो उसकी फॉर्मेशन होगी एंड इट्स पेरिटोनियल कवर टू द पेरिटोनियम. तो ये आप देखें कि इस पिक्चर में ये पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट है और ये आपस में ज्वाइन कर रहे हैं और ये आपस में आ गए. अब ये ब्रॉड लिगामेंट बन रहा है. ये आपका यूट्रस है, तो ये देखें ब्रॉड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस, ब्रॉड लिगामेंट ऑफ द यूट्रोवेसिकल पाउच. यूट्रोवेसिकल पाउच में यानी कि यूट्रस पड़ा हुआ है और उसके ऊपर ये आपका ब्लेडर पड़ा हुआ है. और इस पिक्चर में देखें कि पीछे यूट्रो-रेक्टल पाउच है, तो उस हिसाब से ये रेक्टम पड़ा हुआ है और ऊपर यूट्रस पड़ा हुआ है. दिस इज द डिस्कस ऑलरेडी. सो वजाइना की फॉर्मेशन आफ्टर, ये तो फेलोपियन ट्यूब की फॉर्मेशन हो गई और यूट्रस की फॉर्मेशन हो गई. तो अब हम पढ़ रहे हैं वजाइना की, डिस्कस कर रहे हैं वजाइना की फॉर्मेशन कैसे होती है. Shortly after the solid tip of the paramesonephric duct contact with the urogenital sinus. Paramesonephric duct राइट और लेफ्ट जैसे आपस में ज्वाइन कर रहे हैं तो इसका जो लोअर पोर्शन है paramesonephric duct का, they are contact with the urogenital sinus. टू यूरोजेनाइटल साइनस के जहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है वहां पे टू सॉलिड एविजिनेशन, एविजिनेशन यानी कि सोइलिंग, एक उभार नजर आ रहा है, grow out from the pelvic part of the urogenital sinus. इसको हम कह रहे हैं साइनोवजाइनल बल्ब.
Sinovaginal bulb proliferate and form a solid vaginal plate. Solid vaginal क्या हुआ कि पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट दोनों आपस में ज्वाइन हुई, नीचे वाला पोर्शन जो यूरोजेनाइटल साइनस है उसको अटैच हो रही है, वहां पे एक दो स्वेलिंग प्रोड्यूस हो रही है, और ये जो स्वेलिंग जो एविजिनेशन ग्रो आउट फ्रॉम द पेल्विक पार्ट ऑफ द यूरोजेनाइटल साइनस, उसको हम कह रहे हैं साइनोवाजाइनल बल्ब. साइनोवाजाइनल बल्ब फर्दर उसमें प्रोलिफरेशन हो रही है, तो वो बना रहा है वजाइनल प्लेट. आप इस पिक्चर में देखें तो ये तो था पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट का रिमेनेंट, जिससे ये पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट राइट साइड का, लेफ्ट साइड का, और बीच में ये सेप्टम होता था जो इसको सेपरेट कर रहा था. लेकिन फर्दर जैसे प्रोलिफरेशन होगी तो ये सेप्टम खत्म हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, और ये यूट्राइन कैनाल की फॉर्मेशन होगी. और ये बोथ पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट ज्वाइन, कार्डल टिप ऑफ द पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट का ये ज्वाइन कर रहे हैं, और किस में अटैच हो रहे हैं? यूरोजेनाइटल साइनस. यूरोजेनाइटल साइनस के में ये एक एलिवेशन हो रही है बायलेटरली, जिसको हम साइनोवाजाइनल बल्ब कह रहे हैं. साइनोवाजाइनल बल्ब में फर्दर प्रोलिफरेशन हो रही है, तो ये वजाइनल प्लेट की फॉर्मेशन हो रही है. अब वजाइनल प्लेट की फॉर्मेशन जो ये हो रही है, तो ये एंटीरियर पोर्शन ऑफ द वजाइना, एंड दिस इज द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द वजाइना. Posterior portion of the vagina is found by the lower portion of the paramesonephric duct, while the lower portion of the vagina is found by this part of the urogenital sinus. Connected eye. So the fornix of upper portion of the vagina are formed by the vacuolization of the paramesonephric duct.